اور سب سے پہلے بات، سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے متعدد حملے ناکام بنا دیے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ دہشت گردوں نے کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، دال بدین، خاران، گوادر، پسنی اور پنجگور میں حملے کیے۔ حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 18 شہری شہید۔ سیکیورٹی فورسز کی فوری اور مؤثر کارروائیاں۔ جوابی کارروائی میں 3 خودکش بمباروں سمیت 92 دہشت گرد ہلاک۔ فورسز نے عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران 15 بہادر جوان وطن پر قربان۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کا امن سبوتاج کرنے کی کوشش کی۔ غیر ملکی آقاؤں کے اشارے پر بزدلانہ کارروائیوں کا مقصد بلوچستان کی ترقی کو متاثر کرنا تھا۔ گوادر اور خاران میں دہشت گردوں نے خواتین، بچوں، بزرگوں اور مزدوروں کو شہید کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مؤثر رد عمل دیا، دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ فوج کے بہادر جوانوں نے مختلف علاقوں میں طویل، شدید اور دلیرانہ کلیئرنس آپریشن کیے۔ بزدلانہ حملوں کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں، کرداروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ حملے پاکستان سے باہر موجود دہشت گرد آقاؤں کی ہدایت پر کیے گئے۔ انٹیلیجنس رپورٹس نے تصدیق کی کہ دہشت گرد باہر موجود ہیں اور سرپرستوں سے مسلسل رابطے میں تھے۔ گزشتہ روز پنجگور اور ہرنائے میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کے 41 دہشت گرد مارے گئے۔ 48 گھنٹے میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 133 ہو گئی۔ بلوچستان میں حملوں کے پیچھے بھارت ہے، دنیا کو بتانا ضروری ہے۔ اس دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ پریس کانفرنس۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں نے منصوبہ بندی سے حملے کیے، انہیں ناکام بنایا۔ جو دہشت گرد آیا وہ بچ کر نہیں گیا، اسے چن چن کر ہلاک کیا۔ حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ دہشت گردوں کے پیچھے جو ماسٹرز ہیں، جہاں سے آپریٹ ہوئے، سب معلوم ہے۔ بھارت کو ویسے ہی شکست ہوگی جیسے پہلے دی تھی۔ سرفراز بگٹی نے بتایا آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا، تفصیلات آنا باقی ہیں۔ دہشت گردوں نے گوادر میں خزدار کی رہائشی بلوچ فیملی کو قتل کیا، خواتین اور بچوں کو بے دردی سے شہید کیا۔ دہشت گردوں کو بھرپور اور بروقت جواب دیا۔ اس طرح کے 10 حملے بھی دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ہم سب مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ Is behind those attacks. I can tell you for sure that India planned these attacks along with these terrorists. ہم ایک چیز کے پیچھے جائیں گے، کسی ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑیں گے جس نے اس اٹیک میں حصہ لیا ہے۔ جو ان کے پیچھے ماسٹرز ہیں، یہاں سے بیٹھ کے وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً تمام چیزیں موجود ہیں and we will expose them in the world کہ یہ کس فیس کے ساتھ لوگوں کے سامنے ملتے ہیں اور کس فیس کے ساتھ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دنیا کو اس ٹائم یہ بات بہت ضروری ہے پتہ چل جائے کہ اس ٹائم مین ملک جو دہشت گردی کے پیچھے ہے وہ بھارت ہے۔ جو دہشت گردوں کو فائنینشیل سپورٹ نہیں کر رہا، اس کے علاوہ ان کی پلاننگ، ان کی اسٹریٹجی میں بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ جتنا مرضی کر لے ان کو اسی طرح شکست ہوگی جس طرح ان کو پہلے ہوئی۔ جس طریقے سے دہشت گردوں نے پلان کر کے اٹیک کیے ہیں سارے کے سارے، اور جس طریقے سے پولیس، ایف سیز اور ہماری آرمی نے ان کا مقابلہ کیا ہے، یہ بھی ایک پوری داستان ہے۔ ہمارے جوانوں نے ڈیفینڈ کیا ہے، اور جو دہشت گرد آیا ہے وہ بچ کے نہیں گیا، اس کو ڈھونڈ کے انہوں نے مارا ہے تاکہ وہ بچ کے نہ جا سکے۔ آپریشن تو تقریباً مکمل ہو گیا ہے، لیکن تفصیلات کا آنا باقی ہے۔ ہماری سویلین کیجولٹیز ہیں۔ گوادر میں لیبر کالونی میں گھس کے بلوچ فیملی خزدار کی، ان کی خواتین اور بچوں کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ان دہشت گرد ٹولے کا ان کا مورائل نیچے گر رہا تھا، جسے اپنا مورائل اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ ایک اتنی بڑی کاروائی کا سائز بڑھانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن جو لیتھیلٹی تھی وہ بہت کم تھی۔ سیکورٹی فورسز نے جو ریسپانس دیا ہے دیٹ از سپر۔ غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارا جو ریزالو ہے، اس طرح کے 10 اٹیکس بھی ہمارے ریزالو کو جو ہے وہ کمزور نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ ہماری آرمڈ فورسز ہو، ہماری پولیس ہو۔ ہم بہت ہائی اسپرٹس میں، ابھی ہم زخمیوں سے مل کے آئے ہیں، جو ان کا اسپرٹ میں نے دیکھا ہے، شہداء کی فیملی سے مل کے آئے ہیں، ان کا جو میں نے اسپرٹ دیکھا ہے، اس ملک کا کوئی بال بیکا بھی نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی کسی حقوق کی جدوجہد کا نام نہیں۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر قوم کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بیرونی سرپرستی میں جاری دہشت گردی کا ہدف پاکستان اور بلوچستان کے اپنے لوگ ہیں۔ دہشت گرد ترقی برداشت کرتے ہیں، نہ امن۔ ایکس پر پیغام میں وزیر دفاع نے لکھا دہشت گرد اسی لیے مزدوروں، مسافروں اور شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ دہشت گرد ترقی کے منصوبے اور روزگار کے مواقع تباہ کرنا چاہتے ہیں، سی پیک جیسے منصوبوں کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ یہ گروہ مجرمانہ نیٹ ورکس، منشیات پر چلنے والی معیشت، بھتہ خوری اور سمگلنگ سے مالی مدد دیتے ہیں۔ یہ عناصر سوشل میڈیا سے دہشت گردی کی تشہیر اور نوجوانوں کی بھرتی کرتے ہیں۔ ریاست پرعزم، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مورال بلند ہے۔
दहशत गर्द सहूलतकार और बैरूनी हैंडलर्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशत गर्दों ने घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां मारी, खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों किसी को नहीं बख्शा। गवादर में दहशत गर्दों के हमले में जख्मी शहरियों ने आंखों देखा हाल सुना दिया। एक शख्स ने बताया कि मेरी बीवी ने कुरान सर पर उठाया लेकिन दहशत गर्दों को फिर भी रहम न आया। जख्मी खातून का कहना था हमलावरों ने मेरे बच्चों को भी मारा। बीबी था बाहर था, ऐसे दरवाजे पे गोली मारा ना, वो गोली अंदर आया, हम उधर सोची ये दस्ते भी लग गया और पैसे भी लग गया। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखाल नहीं है तो मैं से मार रहे हैं। क्यों, किस वजह से? वो बच्चों ने बम फेंका, पता नहीं क्या कर Dikari sa Quran ne apeno masen ka kwan ne Quran ne tapeno Quran o baji da Quran na roye no na kun kana masedu ina sadu ina kulli nar kare ilum ke hinar da chunana gari naira ilum ina na kun akira pa amma bas शहीद मसो को तिल्ले से इल्ले। हम लोग मुल्ला मूसा मोड़ में पहुंचे, उधर पहले ग्रेनेड आया, हम लोग वहाँ से बच गया था। बच के हम लोग दुकान के अंदर घुसे, वहाँ पे पता नहीं फायरिंग गोली मारा या ग्रेनेड मारा ये नहीं पता चला हम लोगों को। और मेरे वालिद साहब का सर पे लगा और ये मेरा कजन है, उनको 5-6 जगह में भी लगा। मूसा मोड़ का दुकान पे इधर खड़ा हुआ था, मेरे को अचानक में ऐसा लगा हम पीछे गिर गए। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले 9 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर IG पुलिस भी पुलिस लाइन कोयटा में नमाज जनाजा में शरीक हुए। उन्होंने शहीद अहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क की सलामती के लिए जानों का नजराना देने वाले बहादुर सपूतों को कौम सलाम पेश करती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुस्तैदी और कामयाबी से हमले नाकाम बनाए। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे अज़्म को तोड़ नहीं सकती, कौम को मजीद मजबूत बनाती हैं। रियासत की ताकत और अवाम के आज़्म के सामने दहशत गर्द कभी कामयाब नहीं होंगे। वजीर आला सरफराज बुख्ती नमाज जनाजा के दौरान आपदीदा हो गए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। एक एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाल्लाह। और आप अपना हौसला और हिम्मत बुलंद रखें और नहीं छोड़ो। बलूचिस्तान नहीं पूरी कौम आपकी तरफ आ रहा है, आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बरतानिया ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत की है। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि जाँ बाक अफराद के अहल खाना और तमाम मुतासर अफराद के साथ दिली हमदर्दी है। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने वादी तीरा में बदइंतजामी और नाअहली पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जरके में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर कड़ी तनकीद। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने कहा सूबाई हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। मुतासरीन तीरा के साथ हर फोरम पर खड़े रहेंगे। जिम्मेदारी पीछाई हुकूमत की बनती है वो कर ले, हमें वापस नहीं जाना चाहिए जब तक चिराग और अमन का इलाका ना बन जाए। लोगों को इंदराज किया जा रहा है, इस सूबाई हुकूमत ये तहकीकात करें। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा वादी मामले पर जिरगा, बद इंतजामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर कड़ी तनकीद। साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने कहा मुतासरीन के नामों के इंदराज में सियासी मुदाखलत और अकरबा परवरी की PTI हुकूमत तहकीकात करे, नाअहली और करप्शन के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। लोगों को इंदराज किया जा रहा है उसमें बिल्कुल सियासी मुदाखलत बंद किया जाए, अकरबा परवरी बंद किया जाए, सूबाई हुकूमत ये तहकीकात करे। जिरगा अरकान ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। नकल मकानी करने वालों से यकजहती और भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए कहा सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। मुतासरीन तीरा के साथ हर फोरम पर खड़े रहेंगे। इलाके में जल्द मुस्तकिल अमन कायम करके मुतासरीन की बाइज्जत वापसी यकीनी बनाई जाए। जितनी भी जिम्मेदारी हमारी बनती है वो हम कर रहे हैं।
और जितनी भी जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत की बनती है वो कर ले। इस वक्त तक हमें वापस नहीं जाना चाहिए जब तक सिराम और अमन का इलाका ना बन जाए। जिरगा अरकान ने कहा कि खवारिज के साथ 2 बार जिरगा किया, इसके बाद जिम्मेदारी हुकूमत और मशरान को दी। मुतासिरीन तीरा के मसाइल का हल मजीद ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फायरिंग, शेलिंग, घरों पर मार्टर हमले, क्वाड कॉप्टर गिराने से खौफ फैल रहा है। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के एलामिये में तीरा में खवारिज की इश्तियाल अंगेजियों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया गया। क़याम अमन के लिए आज से बाड़ा में अमन तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया। आपको बताएं कि तीरा जिरगा केपी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। जिरगे ने सिर्फ नाहल नहीं बदउनवान भी करार दिया है। गलत प्रोपेगेंडे पर सूबाई हुकूमत कौम से माफी मांगे। विफाकी वजीर इत्तलात तारड़ की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज फिलहाल ज़ेर गौर नहीं, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद जरूर है। बेहतर होगा सूबाई हुकूमत गवर्नेंस बेहतर बनाए। वाले से बाड़ा के सियासी इत्तेहाद का जिरगा सूबाई हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। उन्होंने न सिर्फ बद इंतजामी का इल्जाम लगाया है बल्कि उन्होंने कहा है कि बदउनवान भी है सूबाई हुकूमत। सूबाई हुकूमत के पास 4 अरब रुपया तीरा के हिजरत करने वाले लोगों के लिए रखा गया था, उसकी 1 पाई का भी हिसाब मौजूद नहीं है। बयानियां बनाने के लिए और सियासत चमकाने के लिए तीरा को इस्तेमाल कर रहे थे। आज सूबाई हुकूमत को पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए कि तीरा के ऊपर मन घड़त इल्जाम लगा के उन्होंने सियासत की। ये ऑप्शन मौजूद रहता तो जरूर है। अच्छा है कि इसकी नौबत ना आए। ये गवर्नेंस को तवज्जो दें। जब गवर्नेंस पूरी तरह नाकाम हो जाए तो फिर ये ऑप्शन जरूर बुरुएकार लाया जाता है। फिलहाल अभी कोई तजवीज नहीं है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल 11 रुपए 30 पैसे महंगा, कीमत 268 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे पर बरकरार है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और लाहौर में बसंत मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज से पतंग और डोर की खरीदारी शुरू हो जाएगी। लिबर्टी मार्केट गोल चक्कर को सजाया जा रहा है। शहर की दीगर अहम शाहराहों को भी सजाया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे ख्वाजा रमजान मजीद से। बताएगा ख्वाजा रमजान, लाहौर में बसंत के हवाले से क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, कई सालों के बाद जो रवायती त्यौहार था लाहौर का, खासतौर पर बसंत, उस पर पाबंदी थी, लेकिन पाबंदी खत्म हुई है। तो उसके बाद इस त्यौहार को जितने साल ये रुका रहा उसी तरह से बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं और लाहौर की अहम शाहराहों को सजाया जा रहा है। मैं इस वक्त लिबर्टी गोल चक्कर पर मौजूद हूं और यहाँ पर रंग बिरंगी लाइट्स से इस गोल चक्कर को सजाया गया है और बाकायदा तौर पर ये मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो ये 60 फुट चौड़ाई और लंबाई में जो तैयार किया जा रहा है, ये इसी गोल चक्कर पर मुख्तलिफ इस पे रंग होंगे, मुख्तलिफ रंगों से सजा होगा और मुख्तलिफ किस्म की इस पे चीजें लिखी होंगी। और इसी तरह से लिबर्टी गोल चक्कर के और भी जगहों पर जो है वो गुड्डे लगाए जा रहे हैं, पतंगे लगाई जा रही हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ शाहराहों को भी सजाया जा रहा है। और ये बसंत फेस्टिवल जो है वो 3 दिन का होगा, 6, 7 और 8 फरवरी को ये मनाया जाएगा और बाकायदा तौर पर इन तीनों दिनों में आम तातील होगी। और इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ये कहना है कि तमाम जो सर्विसेज हैं, बसें हैं, रिक्शे हैं और इसके अलावा दीगर जो सवारियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं, रिक्शे वगैरह, वो फ्री होंगे, तीनों दिन के लिए फ्री होंगी। और मुख्तलिफ मुकामात, मुख्तलिफ पॉइंट सेट किए गए हैं जहां पर फैमिलीज अपने आकर वहां पर इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। वहां पर पंजाबी खास किस्म के जो है वो नगमे गाने भी इस दिन के हवाले से तैयार किए गए हैं जो खास इन दिनों में चलाए जाएंगे। और खास तौर पर जो पतंगे उड़ाई जाती हैं तो छतों का एहतमाम किया जाता है। तो लाहौरिये बड़े बेताब हैं, मुख्तलिफ जगहों पर छतें बुक की जा रही हैं। जिनके पास छतें नहीं है, दोस्त अहबाब मिलकर उन छतों को बुक कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर उन छतों के चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। और अभी से उनकी बुकिंग शुरू होगी और दोस्तों ने प्लान बना रखा है कि वो तमाम रात जो है वो तमाम दिन रमजान, उन छतों ये तो सब ठीक है, एक तरफ तैयारियां तो उरूज पर है, लेकिन हिफाजती इंतजामात के हवाले से क्या देख रहे हैं आप? जिस तरह से कहा गया था गवर्नमेंट की जानिब से कि जो बाइक्स होंगी उनके आगे तार लगवाई जाएगी या दीगर हिफाजती इकदाम।
जी बिल्कुल, इस हवाले से जो लाहौर की पुलिस है उसको टास्क दिया गया है और वो इस हवाले में बड़े तेज और मुतहरक भी नजर आते हुए दाती जैसे डोर है उसका इस्तेमाल पे पाबंदी होगी। किसी भी किस्म की पॉलिटिकल जो पार्टी का वो नुमाया करने के हवाले से भी जो जितनी भी पतंगे बनाई जाएंगी उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई तस्वीर आवेजा नहीं की जाएगी। और उसके साथ साथ जो सेफ्टी के हवाले से अगर बात की जाए तो जो मोटरसाइकिल सवार हैं खास तौर पर उनके लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए थे जहां पर फ्री उनको जो सेफ्टी रॉड हैं वो मुहैया की जा रहे हैं। उस हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई गई है कि जितने भी लोग हैं वो खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो इन दिनों में खास तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और दूसरी जानब लाहौर पुलिस जो है वो बड़ी मुतहरक नजर आ रही है कि ऐसे लोग जो धाती डोर से जो केमिकल से जो डोरें बनाते हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा रमजान रशीद आपका। अब खबरें खेल के मैदान से। बड़े इवेंट से पहले बड़ी टीम के खिलाफ बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने दूसरा T20 भी जीतकर ऑस्ट्रेलिया को 7 साल बाद T20 सीरीज हरा दी। लाहौर में शाहीनों ने पहले कैंगरूज के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल बनाया, फिर 90 रन के मार्जिन से सबसे बड़ी फतह हासिल की। तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची की अहम सड़क जहांगीर रोड का एक ट्रैक एक हफ्ते के लिए आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने बताया तरक्याती काम के बाद सड़क बंद की गई है। 3 हट्टी से लेकर गुरुमंदिर जाने वाले शहरियों को मुतबादिल रास्ता फराहम किया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आसिफ खान। पुलिस की जानिब से अलामिया जारी किया गया है जिसके मुताबिक 3 हट्टी से गुरुमंदिर जाने वाला जो जहांगीर रोड है इस रोड को एक हफ्ते के लिए आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। मुतबादिल रास्ता फराहम किया गया है। वो ट्रैफिक जो ढाखाने से 3 हट्टी की जानिब आएगा उसको 3 हट्टी से जेल चौरंगी, नश्तर रोड, PIB मोड़ और फिर जमशेद रोड और जेल चौरंगी की तरफ से गुरु मंदिर की जानिब वो ट्रैफिक जा सकेगा। इसके अलावा जो हैवी ट्रैफिक है उसको ढाखाने से नाजाबाद 1 नंबर की जानिब मोड़ा जाएगा। तो तरक्याती काम का आगाज हो रहा है जहांगीर रोड पर जिसके बायस जो जहांगीर रोड का एक ट्रैक है ये एक हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पर बंद होगा। वो तमाम अफराद जो जिला सेंट्रल से गुरु मंदिर जाना चाहते हैं वो इसी ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं। और मेयर कराची की जानिब से पहले ही ये कहा गया था कि जहांगीर रोड चूंकि खस्ता हाली का शिकार है इस रोड की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसका जो एक ट्रैक है जो 3 हट्टी से गुरु मंदिर की जानिब जा रहा है ये एक हफ्ते तक आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। कुछ बात सामने है गुल प्लाजा की जिसकी जिम्मेदार इंतजामिया है। पंजाब की माँ बेटी की तरह इंसाफ होना नजर आना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा दूसरे तीसरे दिन कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर बरतरफ और गिरफ्तार हो जाते, लाशें राख हो गईं और हम पानी का पाइप लिए खड़े रहे। वजीर आला सिंध और मेयर कराची सानह गुल प्लाजा के जिम्मेदार नहीं। मैं ये नहीं कहता कि गलती मेयर साहब की है या CM साहब की है, गलती इंतजामिया की है। प्रेशर में जुडिशल कमीशन बनाने की तरफ चले गए। ये चाहिए था पंजाब की तरह अगर एक माँ और बेटी गटर में गिरे ढक्कन ना होने पर तो दूसरे दिन इंसाफ होता नजर आ गया। इंतजामिया को बरतरफ करने और गिरफ्तार करने में कौन लोग घायल? दूसरे और तीसरे दिन SSP बरतरफ होता, DC बरतरफ होता, असिस्टेंट कमिश्नर गिरफ्तार होता, लोग जलते चले गए, दियां जलकर राख हो गई और हम एक पानी का पाइप लिए खड़े थे। सदर फायर स्टेशन से गुल प्लाजा तक का फासला कितनी देर में तय होता है? इमरजेंसी सूरत हाल में फायर ब्रिगेड को किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? कैसे ठेले पथारे और सड़क पर पार्क गाड़ियां रास्ते में हायल होती हैं? इस हवाले से बता रहे हैं सलमान लोधी। गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई। वाकये की इत्तला 10:26 पर फायर ब्रिगेड को दी गई। इस वक्त रात के 10:26 हो रहे हैं और मैं मौजूद हूँ सदर फायर स्टेशन पर। यहाँ से गुल प्लाजा पहुँचने में फायर ब्रिगेड को कितना वक्त लगा और रास्ते में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, आइए अमली तौर पर जानते हैं। सदर फायर स्टेशन से निकलने के बाद एम्प्रेस मार्केट से एमेजेना रोड जाने वाले रास्ते पर जगह जगह ठेलों और खरीदारों की पार्किंग के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। हम 10:34 पर गुल प्लाजा पहुंचे हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 10:37 पर यहां पहुंची थी। वापस सदर फायर स्टेशन की जानिब रवाना हो रहे हैं।
10:38 पर यानी सिर्फ 2 मिनट में सदर फायर स्टेशन वापस पहुंच चुके हैं। सदर की शाहराहों पर तजावजात की भरमार, पुलिस वाले भी रिश्वत लेकर इन्हें कुछ नहीं कहते। KMC वाले, KMC वाले, पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले 500 ले जाते हैं, कोई 1000 ले जाते हैं, ऐसे ही आते हैं। ये एक थोड़ी आता है, ट्रैफिक वाला आता है, पुलिस वाला आता है, सारे आते हैं। ये FIR देखो हुआ है। थाने से जो सामान जमा कराया था वो नहीं दिया अभी तक। MHNA रोड, सदर और कई शाहराहों पर न ट्रैफिक सिग्नल काम करते दिखाई दिए, न एहलकार मौजूद थे। ट्रैफिक का निजाम भी शहरियों की मर्जी से चल रहा है, कोई भी कहीं भी गाड़ी पार्क करके निकल जाता है। आम हकाइक इस बात की निशानदही करते हैं, अगर बरवक्त रास्ते क्लियर हों और तजावजात के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की जाएं तो हंगामी सूरत हाल में कीमती इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं। कैमरामैन फहीम खान और शहजाद मेमन के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। और अब बात लाहौर भाटी गेट वाक़े की, जिसमें मुतासरा शख्स ने पुलिस तशद्दुद की वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में गुलाम मुर्तजा जिस्म पर तशद्दुद के निशानात दिखा रहे हैं। बीवी और बेटी के मरने के बाद पुलिस ने गुलाम मुर्तजा को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया था। गवर्नर सिंध की जानिब से ANP सरबराह सेनेटर एमल वली खान के लिए गवर्नर हाउस कराची में खुसूसी दावत हलीम का एहतमाम किया गया। गवर्नर ने खुद हलीम बनाकर खिलाई। दावत हलीम पर सियासी सूरत हाल समेत शहर के मामलात पर MQM और ANP के साथ चलने पर भी गुफ्तगू हुई। मजीद बता रहे हैं राफी हुसैन। सरबराह ANP सेनेटर एमल वली खान गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की खुसूसी दावत पर गवर्नर हाउस पहुंचे हैं और उनके हमरा शाही सैयद भी मौजूद हैं, जबकि गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से उनके लिए दावत हलीम का एहतमाम किया गया और खुद गवर्नर टिसोरी ने उनके लिए हलीम तैयार किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एमल वली साहब का कि जिन्होंने हमारी दावत कबूल की। पहली दफ़ा सिंध के गवर्नर हाउस तशरीफ लाए तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने हाथ से आपके लिए हलीम तैयार करूंगा। मैंने हलीम तैयार की, अब उनको पसंद आई नहीं आई वो आप इनसे खुद पूछें। एमल साहब, आपको हलीम पसंद आई है? जी, जाहिर सी बात है, प्यार से कुछ भी मिले पसंद तो आएगा। शहर में क्या MQM ANP मुस्तकबिल में साथ चलने में कोई गौर हुआ, कोई बातचीत हुई? इस कराची के एक दो बड़े फोर्स, एक दो कौमियतों को नुमाइंदगी करने वाले एक साथ बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कराची की बेहतरी के लिए बहुत सारी बातें हुई होंगी। तमाम पाकिस्तान को एक बेहतरीन, मजबूत और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की अच्छाई तभी होगी जब ताकत का महवर निचली सतह पे चला जाएगा। इस मुलाकात में जो है वो कराची में ANP और MQM को साथ चलने पर भी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने MQM की जो मजबूत बल्दियाती निज़ाम है उसकी भी हिमायत की है कि ये ज़रूरी है, मुल्क में निचली सतह तक इख्तियारात को मुंतकली के लिए इसका अमल में आना ज़रूरी उन्होंने करार दिया है। पेशावर में 161 साल कदीम मुहाफिज खाना असल हालत में बहाल कर दिया गया। 5 करोड़ रुपए की लागत से मुहाफिज खाने को रीस्टोर करके आवाम के लिए खोलने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट कर रही हैं शाजिया निसार। शहर पेशावर एक बार फिर अपने माजी की यादगारों से गर्द हटाने लगा। महकमे माल का 161 साल कदीम मुहाफिज खाना जो बरसों तक खामोशी से जवाल की तस्वीर बना रहा, अब अपनी असल शान शौकत के साथ बहाल हो चुका है। 1864 में अंग्रेज दौर में तामीर होने वाली ये इमारत कभी सरकारी रिकॉर्ड की अमीन थी और आज भी इसकी मोटी दीवारें और मजबूत साख्त गुजरे वक्त की कहानियाँ सुनाती महसूस होती हैं। बिल्कुल तकरीबन डैमेज थी, इसके जो छतें थे सारे गिरे हुए थे, दीवारें गिरी हुई थी। तकरीबन 70 ईयर्स इसकी कोई जो है ना कंजर्वेशन या इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई थी। तो ये बिल्कुल, और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन अभी हमने उसको किया तकरीबन ये कोई 4 साल इसकी कंजर्वेशन उसके प्रोसेस पे सारे लग गए। वक्त की गर्द ने इस तारीखी विरसे को खस्ता हाल जरूर किया मगर इसकी पहचान मिटा न सकी। पेशावर अपलिफ्ट स्कीम के तहत सूबाई हुकूमत ने 5 करोड़ रुपए की लागत से इस मुहाफिज खाने को रिस्टोर किया और अंग्रेज दौर के मखसूस तर्ज तामीर, मेहराबी दरवाजों और मजबूत ढांचे को पूरी महारत के साथ असल हालत में महफूज किया गया। हम इसको अपने सूबे का कल्चरल सेंटर बनाना चाहते हैं क्योंकि पिछले 40-45 साल से इस सूबे में, इस रीजन में मिलिटेंसी रही है। तो जैसे हमारे कल्चर, म्यूजिक, जिसमें म्यूजिक आता है, जिसमें डांस आता है, जिसमें ड्रेसेस आते हैं, जिसमें पोइट्री आती है, ये इसने बहुत सफ़र किया। हम वो सेंटर बनाएं जो कि पहले डैमेज कंट्रोल करे, हमारे आर्ट्स
एंड सिविलाइजेशन का, और फिर जो नुकसान हुआ है इसको हम रिकवर करके सकाफत है, सिविलाइजेशन, इसको हम आगे लेके जाएं। बहाल शुदा मुहाफिज खाना पेशावर के तारीखी मकामात में एक कीमती इजाफा है। ये बहाली इस बात का सबूत है कि जब तारीखी विरसे की हिफाजत की जाए तो माजी और हाल के दरमियान एक मजबूत और जिंदा रिश्ता कायम रहता है। पेशावर को महफूज बनाने के लिए न सिर्फ इस्माइल खाने को दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाया गया है, बल्कि इसको अंग्रेज दौर में बनाए गए नक्श पर दोबारा बहाल भी किया गया है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ शाजिया निसार, एयरवाई न्यूज, पेशावर। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त देखते रहिए आबाई न्यूज।